Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children and as you can see in front of you हम लोग आपको कोटा से quality level education provide कर रहे हैं and all the classes for all the classes that we are giving the video lectures are mentioned in front of you, that is 6 to 8 Olympiads, NTSC, NSC, JS, PRMO, 6 to 10 school level examinations, NMTC and so on. So you can see it there children, और जितने भी playlist है वो बनी हुई है, you can go through them according to your class. So this is it. You have to like, subscribe and share this channel to many more students. And आज का जो lecture है, ये वाला जो lecture है, that is for NMTC sub junior and this is the last lecture children. मतलब last lecture, last chapter miscellaneous and उस मिसलेनियस में भी लास्ट लेक्चर में वी स्टडीड अबाउट द क्लॉक एंड आज के लेक्चर में भी हम लोग क्लॉक से रिलेटेड ही थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट इट अप फॉर दिस इज आवर सुपर ऑसम टीम चिल्ड्रन एंड हम सबके लेक्चर्स अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू प्लेलिस्ट. जो प्लेलिस्ट बनी हुई है यू कैन गो थ्रू इट एंड कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए या ऐसा कुछ भी लगता है कि आपको नहीं समझ आ रहा है, so you can always ask us that, right children? Moving on, this is a brief about me. I'm taking NMTC primary and sub junior as well as class 6 to 8. My name is Aditi children. As you can see very well on the screen, this is our telegram for different classes. Telegram channel for different classes have been made and you are supposed to join according to your class. Whenever you join the telegram according to your class, none of your lecture would go miss. आपका कोई lecture miss नहीं होगा, सारा information आपको timely पता लग जाएगा and जो भी latest information होगा वो भी आपको पता लगता रहेगा, right children? So that is the use of joining the telegram. This is our website children, talkingtextbooks.in. और आपको यही करना है कि like you see, as you can see here 6300 में you're getting the complete package after using my code AVLive. So when you use my code AVLive you get 30% off discount and this pricing जो 9000 का प्राइस दिख रहा है वो 6300 का हो जाएगा. that will have all the आप ये कह सकते हो सारे inclusions जो हैं वो mention है यहाँ पर. and if you do not require the study material then this is the package for you. दिस इज द टेस्ट सीरीज. आप एनालिसिस कर पाएंगे आपका क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, एज इन मतलब कौन सा आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, कौन सा वीक है जिसमें ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत है. स्टिल कुछ भी क्वेरीज होती है चिल्ड्रन, सो दिस इज द नंबर है 9549041111. यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर. Right, oh children. Moving on, let's complete with our ritual and then we'll start with the chapter for today. So lecture 1 में we studied a bit about clock. जो भी उसका basic होता है वो हमने clock का पढ़ा था. and in lecture 2 we are going to study about clock. मतलब obviously clock का part 2 हम लोग पढ़ेंगे जिसमें हम लोग को part 1 पता होना चाहिए, जो उसका basics हैं वो पता होने चाहिए and a bit about calendar as well, right? calendar का भी थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए. so calendar को जानने से पहले उसका prerequisite क्या, obviously you should know months. जो months होते हैं वो पता होने चाहिए clearly and बस यही सब चीज़ें हैं. so let's start with the clock. पहले हम क्लॉक के बारे में पढ़ लेते हैं जो हमारा बेसिक रह गया था. सो चिल्ड्रन लास्ट टाइम वी स्टडीड दिस, सी एंगल बिटवीन द क्लॉक हैंड्स, राइट? तो हमने क्या पढ़ा था कि एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स एट 8:30, राइट? 8:30 के बीच में मुझे ये एंगल निकालना था. तो व्हाट डिड वी स्टडी कि भाई मतलब एक नंबर से दूसरे नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में एंगल कितना होता है, 30 डिग्रीज का होता है, राइट? तो 6 to 8 तो 60 डिग्रीज हो गया प्लस 30 मिनट्स का कितना था चिल्ड्रन, 15 डिग्रीज, राइट? सो वी जस्ट एडेड अप 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री 75 डिग्रीज. बट देन इसका एक फॉर्मूला भी होता है चिल्ड्रन. देयर इज अ वे टू फाइंड दिस आउट एंड दैट फॉर्मूला टू फाइंड द थीटा, राइट? मतलब अगर मैं इस तरह से एक क्लॉक बना दूं, राइट? दिस इज 12, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11, राइट? और यहाँ पे 8:30, लाइक आई सेड कि 8:30 हो रहा है तो समवॉट हेयर मेरा आर हैंड होगा
और यहाँ पे मेरा मिनट हैंड होगा, राइट। तो अब इसके अंदर अगर मुझे 8:30 बताना है तो हाउ एम आई गोइंग टू शो इट? सी फॉर्मूला इज, सी दिस इज द थीटा, मतलब जो मुझे फाइंड आउट करना है चिल्ड्रन, दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू फाइंड आउट, एंगल, है ना। तो एंगल को अपन थीटा मान लेते हैं। सो थीटा इज इक्वल्स टू 11/2 into minutes which are given to me, minus 30 into r, राइट। ये मेरा फॉर्मूला है, राइट। सो अब मुझे क्या गिवन था चिल्ड्रन? क्वेश्चन वाज एंगल बिटवीन, क्वेश्चन वाज, let me write it again, question was angle between both hands at 8:30, right? यही पूछा गया था मुझसे, this is what was asked, right? तो अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे, थीटा is the angle that is required, angle, so angle is equals to theta here, तो अब मैं इस फॉर्मूला में पुट कर दूंगी चिल्ड्रन, तो कितना हो जाएगा? देखो थीटा जो मुझे फाइंड करना है 11/2, मिनट्स कितने दे रखे हैं? 30 दे रखे हैं, 30 माइनस 30 इंटू आर कितना दे रखा है चिल्ड्रन? 8, राइट। सो ये कितना हो गया? 15। सो दिस बिकम्स 165 माइनस 240, राइट। तो कितना हो गया चिल्ड्रन? ये -75 डिग्रीज, राइट, -75 डिग्रीज हो गया। अब थीटा माइनस है, इसका क्या मतलब हुआ? राइट, थीटा माइनस है, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका सिंपल मीनिंग है चिल्ड्रन, देखो ये जो मेरा मिनट हैंड है ना, अगर ये नेगेटिव में आ रहा है ना, अगर ये नेगेटिव में आ रहा है तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि द मिनट हैंड जो है वो आर हैंड के पीछे है ना, इट इज आफ्टर द आर हैंड। अब अगर कहीं तो यहाँ पर अगर मेरा मिनट हैंड होगा तो इट इज बिफोर आर हैंड, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पे कहीं पे मिनट हैंड हो रहा है तो इट इज बिफोर आर हैंड, तो मेरा थीटा पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात लिख दूं, और वो क्या है? सी इफ मिनट हैंड क्रॉसेस आर हैंड, if minute hand crosses our hand, if minute hand crosses our hand, then theta is positive. If our hand crosses minute hand, then थीटा इज नेगेटिव। सिंपल सी बात, बहुत ही सिंपल सी बात है ना। देखते हैं, चलो अपन सी जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल आपको करके बताऊं, अगर यहाँ पर जैसे मैंने क्लॉक बनाई है ना, अब थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी हो गई है, लेट मी मेक इट प्रॉपरली। मैं इसको प्रॉपर बनाती हूँ इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। तो एक टाइम तो हुआ इस तरह से, देखना समझना, एक टाइम तो मेरा, अगर मैं बताती हूँ 4 o'clock, ठीक है, अगर मैंने बोला 4 o'clock हो रही है, तो इसका मतलब आर हैंड यहाँ पर है और ये क्या है? मिनट हैंड है ना। तो अब मेरा थीटा कहाँ है?
आर हैंड से पहले है। सो थीटा फाइंड आउट करके देखते हैं थीटा कितना आता है। लेट्स फाइंड आउट कि इसमें थीटा कितना आता है। सी थीटा इज इक्वल्स टू 11/2 मिनट्स। मिनट्स कितने हैं? 0 मिनट्स है क्योंकि 4 o'clock हो रहा है, माइनस 30 इंटू आर हैंड। आर कितना है? 4। सो कितना दे देगा ये मुझे? 11/2 माइनस 120. So how much this gives me? 11 minus 0, 2 to the 4 and 240 upon 2. So this comes out to be, just a second children. So let's do it. ये कितना हो जाएगा children? This will come out to be 229 minus 229 upon 2. So this gives me somewhat equal to 2 ones are 2, 2 ones are 2 and 2 fours are 8. 2 fours are 8. So this should actually give 30 and 30. 6, 120 degrees somewhat कुछ होना चाहिए इसका 1.5. तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? Minute is 0. Yes, we did mistake, and the mistake was this only children. Mistake क्या थी? मिनट में हमें क्या लेना है? मिनट में we are supposed to take 0. मिनट हमें 0 लेना है क्योंकि मिनट क्या है? 0 है। एट 4 o'clock 0 हो जाएगा तो ये कितना हो गया? 0 minus 120. तो ये कितना हो गया? minus 120 डिग्रीज। तो समझ में आ गया minus 120 डिग्रीज का मतलब, माइनस का मतलब क्या हुआ कि जो मेरा वो है मिनट हैंड है वो आर हैंड से पहले है। ठीक है, अब सेम चीज को अपन फाइंड आउट करते हैं 4:35 पे, है ना। ये 4:35 है तो मेरा समवॉट इट इज गोइंग टू बी हियर 4 और 5 के बीच में, और मिनट हैंड मेरा होगा 7 पे, है ना। अब इसके बीच में थीटा फाइंड आउट करते हैं। सो लेट्स डू दैट। एट 4:35 अब थीटा कितना होगा देखते हैं, है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी 11/2 इंटू मिनट 35 है minus 30 into 4. So this gives me how much? See, 35 into 11 is 385 divided by 2. 35 into 11 is 385. 385 and 5, 6, 7, 8. 385 and 192.5. तो ये कितना हो जाएगा? 192.5 minus 120. राइट, सिंपल। माइनस 120 होगा तो दिस गिव्स मी हाउ मच? 72.5 डिग्रीज। पॉजिटिव आ गया, अपने आप पता लग गया कि पॉजिटिव क्यों आ गया, क्योंकि जो मिनट हैंड है दैट इज आफ्टर दिस आर हैंड, राइट। ये आर हैंड के बाद है, लाइक बिफोर आर हैंड है, बिफोर आर हैंड है, क्रॉस कर लिया उसने आर हैंड को तो पॉजिटिव आ गया। और अगर नहीं करता, जैसे कि 4 o'clock पे कर रहे थे तो ये बिफोर था, मतलब आर हैंड ने क्रॉस कर लिया था तो इसका मतलब वो नेगेटिव आ गया था। क्लियर है चिल्ड्रन? तो नेगेटिव पॉजिटिव मतलब अगर मैं एंगल निकालने के लिए थीटा इक्वल्स टू 11/2 इंटू मिनट्स -30 इंटू आर करती हूँ और थीटा पॉजिटिव आता है तो क्या रीजन होगा, क्यों होगा, और नेगेटिव आता है तो उसका क्या मीनिंग होगा, इससे हमें पता लग गया। ठीक है, सो दिस वाज इट चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन इसी पे बेस्ड, बट उससे पहले इंक चेंज कर लेते हैं।
So angle between 2 minutes. If it says angle between 2 minutes, है ना, मतलब एंगल बिटवीन टू हैंड्स, एंगल बिटवीन 2 मिनट्स. अब 2 मिनट्स में मुझे आर हैंड के लिए भी निकालना है और मिनट हैंड के लिए भी निकालना है. ठीक है, मान लो मैंने ये ड्रॉ किया है. अब इसमें दिस इज 12 एंड ये 1 है, तो मान लो इसमें 1 2 3 4 5 इस तरह से हो गया. दिस इज 1 मोर, है ना. अब यहाँ पे मुझे 2 मिनट्स मिनट हैंड के लिए अगर निकालना है, जैसे यहाँ पर मेरा मिनट हैंड है और फिर 2 मिनट के बाद, अब इसमें थीटा कितना होगा. सो देखो, लेट्स टॉक अबाउट द मिनट हैंड. एक मिनट में कितना डिग्रीज होता है चिल्ड्रन फॉर मिनट हैंड? in 1 minute angle in 1 minute is angle in 1 minute is 6 degrees, right? Angle in 1 minute is 6 degrees. तो 2 minutes में कितना होगा? 2 minutes में कितना होगा? 6 into 2 12 degrees. सिंपल. अब अगर आर हैंड के लिए बात करनी है अपने को, आर हैंड के लिए बात करनी है, मान लो दिस इज समथिंग लाइक दिस कि 2 मिनट के अंदर, मतलब ये मेरा आर हैंड है और ये 2 मिनट में हार्डली इट इज गोइंग टू ट्रैवल एनीथिंग ना. 2 मिनट के अंदर इतना भी ट्रैवल नहीं करेगा, पर दिखाने के लिए लाइक आई एम टेलिंग. तो आर हैंड 1 मिनट के अंदर एंगल इन 1 मिनट कितना होता है चिल्ड्रन? 1/2 डिग्रीज. 1/2 डिग्रीज होता है, तो 2 मिनट में कितना होगा? 1 डिग्रीज, राइट. तो ये कितना चलेगा? थीटा कितना होगा? 1 डिग्रीज. सो अब एंगल बिटवीन द टू हैंड्स, द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स, या टू हैंड्स की जगह ऐसे लिख लो, बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आर हैंड. एंगल बिटवीन द मिनट हैंड and the R hand. Angle between the minute hand and the R hand in 2 minutes. तो अब इनके बीच का एंगल कितना होगा चिल्ड्रन? मतलब 2 मिनट में, मतलब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया, पर मान लो जैसे मैं प्रॉपर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या पूछ रहा है. सी दिस इज नॉट प्रॉपरली ड्रॉन, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली. इस तरह से. सो ये क्या हो गया? दिस इज 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11. तो अब इसके अंदर मान लो जैसे 3 o'clock हो रही है ना. मान लो कि हम बात कर रहे हैं 3 o'clock हो रही है, ठीक है. अब वो बोल रहा है कि 2 मिनट के अंदर एंगल डिफरेंस कितना होगा. ठीक है, मतलब समझना बात को. 2 मिनट के अंदर जो मेरा मिनट हैंड है वो मान लो इतना चलेगा, है ना. तो कुछ ना कुछ मेरा आर हैंड भी चलेगा, है ना. आर हैंड भी मेरा कुछ ना कुछ चलेगा 2 मिनट विद इन 2 मिनट्स. तो 2 मिनट में मिनट हैंड इतना चला, आर हैंड भी कुछ ना कुछ चला. तो अब इनके बीच का एंगल पूछ रहा है वो. अब इनके बीच का एंगल पूछ रहा है. तो मैंने देख लिया कि भाई 2 मिनट में मिनट हैंड कितना चलता है और आर हैंड कितना चलता है. अब बस मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, राइट. मैं सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी. तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? एंगल कितना आ जाएगा? मतलब
required angle is equals to 12 minus 1. degrees. ठीक है, 11 degrees. So I hope you have understood, children. Theta is equals to, please copy it down children, इसको copy कर लो. देखो अगर आप उससे भी करना चाहो, थीटा इज इक्वल्स टू 11/2, मिनट्स कितने हैं 2 मिनट्स है, माइनस 13 आवर्स कुछ भी नहीं है, 0 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11 डिग्रीज आंसर आ गया. इससे भी आ जाएगा, डायरेक्ट निकालना चाहो, राइट, पर कंसेप्ट भी समझना जरूरी है ना. तो ये अपने को आ गया समझ में. दिस इज डन. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंट थिंग. अब देखो, अब अपन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की, और वो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है चिल्ड्रन. सी, अगर मैंने इस तरह से क्लॉक बनाई है ना, अब मान लो दिस इज 12, मतलब मान क्या लो होता ही है, दिस इज 6, पर अब हम ये मान रहे हैं कि 6 o'clock हो रही है ना, हम ये मान रहे हैं कि 6 o'clock हो रही है. इस टाइम पे दोनों हैंड, जो आर हैंड है और मिनट हैंड है, इनके बीच का एंगल कितना है चिल्ड्रन, इनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री. 180 डिग्री मीन्स ये एक्चुअली एक लाइन बना रहे हैं, और क्या कह सकते हो, मतलब दे आर फॉर्मिंग अ लाइन, और 180 डिग्री है, इसका मतलब ये सेंटर पार्ट है, ये दोनों क्या है, ऑपोजिट टू ईच अदर. तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, व्हेन क्लॉक हैंड्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर, व्हेन clock hands are opposite to each other, या आप ये भी कह सकते हो कि थीटा इज 180 डिग्री, ये भी कहा जा सकता है ना, दोनों ही चीजें कही जा सकती है. अब ऐसा कितनी बार होगा, ऐसा चिल्ड्रन कितनी बार होगा, मतलब अगर हम 12 आवर्स की बात करें तो 12 आवर्स में ऐसे कितने 180 डिग्रीज, या ऐसे कितनी बार होगा कि जो लाइंस हैं, जो दोनों हैंड्स हैं, वो क्या हो रहे होंगे, क्लॉक के जो हैंड्स है, आर हैंड और मिनट हैंड, वो एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे या 180 डिग्री एंगल बना रहे होंगे, राइट. तो ऐसा कितनी बार होगा 12 आवर्स में. तो उसके एक्सक्यूज मी, तो उसके कुछ रूल्स रहते हैं चिल्ड्रन, एक फॉर्मूला रहता है जिससे निकाला जाता है, बट देन हम डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं. तो वो क्या है, ऑब्वियसली वो जो थीटा है वो फॉर्मूला से निकलता है. तो हम क्या लिख सकते हैं चिल्ड्रन इसके लिए, दे पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ओनली 11 टाइम्स इन 12 आवर्स. दे पॉइंट इन opposite direction, they point in opposite direction, या theta is 180 degree only 11 times, सिर्फ 11 times ऐसा होता है चिल्ड्रन इन 12 आवर्स. 12 आवर्स के स्पैन में, मतलब एक बारी मान लो 6 बजी, सुबह की 6 से रात की 6 में, है ना, शाम की 6 में, मतलब 12 आवर्स हो गए. तो उस टाइम पे चिल्ड्रन सिर्फ 11 बार वो 180 डिग्री या ऑपोजिट टू ईच अदर होता है. क्यों, अब इसका इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज ऐसा क्यों होता है, बिटवीन 5 PM एंड 7 PM, बिकॉज बिटवीन 5 PM and 7 PM they point in opposite direction at 6 o'clock only. They point in opposite direction. They point in opposite direction at 6 o'clock only. राइट. सो आप समझ गए, जैसे यहां पर मैंने बोला एक्सक्यूज मी, दिस इज 1 2, दिस इज 3 4
5, 6, 7, 8, 9, this is 10 and 11, राइट. सो एक बार इस तरह से 6 o'clock के बाद, सुबह की 6 से रात की 6 की बात करो, मतलब शाम की 6 या शाम की 6 से सुबह की 6 की बात करो, कोई भी 12 आवर्स ले लो, तो उसके अंदर चिल्ड्रन 5 से 7 के बीच में, वैसे तो हर आर में इस तरह से हो रहा है, कुछ ना कुछ एंगल बना करके, मतलब जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली 1 और 7, मतलब 1 और 8 के बीच में इस तरह से बने ही सही, राइट, 1 और 7 के बीच में, राइट. तो इस तरह से कुछ एक थोड़े बहुत टाइम ड्यूरेशन अलग होगा, बट देन अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट इट, तो 5 से 7 के बीच में चिल्ड्रन, इट विल बी ओनली वंस at 6 o'clock that it will be forming 180 डिग्री. अदरवाइज बाकी हर एक एंगल पे, मतलब 1 बजे के टाइम पे भी वो कहीं ना कहीं पे बना ही रहा होगा 180 डिग्री. 2 और 8 के बीच में बनेगा, 3 और 9 पे होगा, 4 10 होगा, राइट. तो इस तरह से ऑल्दो थोड़ा सा वेरिएशन होगा, बट देन इस तरह से वो 180 डिग्री बना लेगा. बट बिटवीन 5 to 7 PM, 5 से 7 के बीच में, नॉट PM, मतलब AM PM जो भी है, between 5 o'clock to 7 o'clock, it shows 180 degree only once, that is at 6 o'clock. That is why हम बोलते हैं कि like in 12 hours there are only 11 times when it is opposite in direction, otherwise not, right. So what can be an important conclusion here, that in a day children, मतलब 24 hours में they are opposite in direction how many times? They are opposite in direction for how many times? भाई देखो, अगर 12 घंटे में 11 टाइम्स है, तो 24 आवर्स में, राइट, 12 आवर्स में 11 टाइम्स है, तो 24 आवर्स में 22 टाइम्स, राइट. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग चिल्ड्रन टू रिमेंबर, कि 180 डिग्री थीटा बन रहा है, एंगल 180 डिग्री बन रहा है, या ऑपोजिट है एक दूसरे से, तो वो कितने टाइम, 12 आवर्स में 11 टाइम्स है, 24 आवर्स में 22 टाइम्स है. इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, राइट. इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब एंगल कितना है, 90 डिग्रीज, ठीक है. जैसे यहाँ पे दिस इज 12, दिस इज 3, वेरी इजी टू नो, राइट. कितना है, 90 डिग्रीज. सिमिलरली इस तरफ भी बन सकता है, मान लो 8:45 की हम बात करें, राइट, दैट इज 9:45, सॉरी, मतलब 9 o'clock, नॉट 9:45, 9 o'clock. 3 PM की बात, 3 o'clock की बात करोगे तब भी 90 डिग्रीज है, 9 o'clock की बात करोगे तब भी 90 डिग्रीज है. तो इस तरह से ये 90 डिग्रीज कितनी बार बनेंगे, राइट. सो माई पॉइंट इज, व्हेन क्लॉक हैंड्स आर 90 डिग्री टू ईच अदर, व्हेन क्लॉक हैंड्स, जो हमारे आवर और मिनट हैंड है, व्हेन क्लॉक हैंड्स आर 90 डिग्री to each other, which means what, theta is equals to 90 degree. Simple thing. अब ये कितनी बार होगा, like how many times it is going to come? See, each hour has 2 occurrences of 90 degrees children. मतलब हर एक आर में there are like in every hour it occurs twice. So each hour has 2 occurrences of 90 degrees, राइट. मतलब हर एक घंटे में 2 बार 90 डिग्रीज अकर होगा. तो इस हिसाब से 12 आवर्स में कितना हो जाना चाहिए, 24 टाइम्स. भाई इस हिसाब से एक घंटे में अगर 2 टाइम्स हो रहा है, एक घंटे में अगर 2 टाइम्स हो रहा है, तो 12 आवर्स में चिल्ड्रन 24 टाइम्स हो जाना चाहिए, राइट. बट देन दिस इज नॉट देयर, दिस इज नॉट सो. व्हाई इट इज नॉट सो? बिकॉज ये आप ये लिख लो, इसको डायरेक्ट बट लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. इंपॉर्टेंट पार्ट,
hours between 2 o'clock to 4 o'clock. Hours between 2 o'clock to 4 o'clock and 8 o'clock to 10 o'clock. 8 o'clock to 10 o'clock. राइट ये दो टाइम है चिल्ड्रन, बहुत ध्यान से देखना. ये दो टाइम ऐसे हैं 2 o'clock to 4 o'clock and 8 o'clock to 10 o'clock. ये ऐसे दो टाइम है जब जो 90 डिग्री है वो कितने टाइम अकर हो रहा है? ओनली 3 टाइम्स. ओनली 3 टाइम्स अकर हो रहा है. ओनली 3 टाइम्स. ऐसे तो देखो कितने आवर्स हैं? 2 to 4. 2 to 4 कितने आवर्स हैं? 2 आवर्स हैं. तो 2 आवर्स का मतलब क्या हो गया? 4 टाइम्स होना चाहिए. 4 टाइम्स बनना चाहिए 90 डिग्रीज, है ना. देखो हम क्या बोल रहे हैं भाई, ईच आवर में, एक आवर में 2 टाइम्स अकर हो रहा है ना. एक आवर में 2 टाइम्स अकर हो रहा है, तो मतलब 2 आवर्स में कितने टाइम होना चाहिए? 4 टाइम्स अकर होना चाहिए. सिंपल मैथ, राइट. बट ऐसा नहीं हो रहा. 2 से 4 के बीच में, मतलब दिस इज 1 2 3 and 4 5 6 7 8 9 10 and 11. So if we talk about this, see 2 to 4 मतलब यहां से लेकर यहां तक में सिर्फ 3 टाइम्स हो रहा है, और 8 to 10 मतलब यहां से लेकर के यहां तक में सिर्फ 3 टाइम्स हो रहा है, यानी कि 4 टाइम नहीं हो रहा है ना. एक तो ये जो 9 o'clock है चिल्ड्रन, ये जो 9 o'clock है वो 9 to 10 के बीच के लिए भी है, और 9 o'clock जो है वो 9 to 8 के लिए भी है ना. मतलब 8 से 9 के बीच में एक बार तो कभी और बनेगा. 8 मतलब आप ये मानो कि 8 से 9 के बीच में समवॉट कहाँ बनना चाहिए ये 90 डिग्रीज, मतलब इस जगह पे कहीं तो बनेगा. 825 है, इस तरह से कुछ तो बनना चाहिए, राइट. दिस इज गोइंग टू बी 60 70 80 90, मतलब हाँ आप मान के चलो कि 825 एंड समथिंग, मतलब 825 एंड कुछ रैशनल नंबर आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में कुछ तो नंबर आएगा. सो 825 से थोड़ा सा टाइम ज्यादा होगा कहीं पर, यहाँ पर तो आपका 90 डिग्री बनेगा, है ना. 8 से 9 की बात कर रही हूँ मैं. एक तो यहाँ पे कहीं पे बनेगा, है ना, और एक बनेगा 9 बजे. ये हुआ 8 से 9 के बीच में. और सेम इज द केस हियर एज वेल. 9 से 10 के बीच में भी कहाँ होगा? एक तो 9 o'clock पे बनेगा, मतलब 90 डिग्री, और एक फिर 9 और 10 के बीच में बनेगा. ठीक है. सो इस तरह से 2 to 4, इसमें भी यही केस है कि 3 PM जो है वो 2 से 3 के लिए भी कॉमन है और 3 से 4 के लिए भी कॉमन है. ऐसा सिर्फ यहाँ पर हो रहा है. तो इसलिए यहाँ पर भी सिर्फ 3 टाइम्स हो रहा है, क्योंकि 3 जो 3 o'clock है वो कॉमन है 2 to 3 के लिए, 3 4 के लिए, और सेम वेज 9 o'clock कॉमन है 9 to 10 के लिए और 8 to 9 के लिए. इसलिए यहाँ पे 3 टाइम्स हो रहा है. क्लियर. तो इस हिसाब से मैं क्या कह सकती हूँ चिल्ड्रन कि मैं ये कह सकती हूँ कि मैं पेन का इंक चेंज करना चाहूंगी. सो आई कैन से दैट in 12 hours it should have occurred for 24 times, but then it occurs for 22 times, है ना. 22 बार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 बार हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 3 बार हो रहा है. एंड इन 24 hours it occurs how many times? Obviously 22 into 2. 12 to the 24, तो 22 into 2, that is 44 times. क्लियर है चिल्ड्रन? कितनी बार होगा? 44 टाइम्स होगा.
सो ये अगेन हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात याद रखने की कि 90 डिग्री कितनी बार अगर होता है, 12 आवर्स में 22 टाइम्स और 24 आवर्स में 44 टाइम्स। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, व्हेन क्लॉक हैंड्स कोइंसाइड विथ ईच अदर, मतलब ये मेरा 12 ओ क्लॉक है, ये मेरा मिनट हैंड है, और ये ही मेरा, यहीं पर ही मेरा आवर हैंड भी है। मतलब कितना हो रहा है चिल्ड्रन, 12 ओ क्लॉक। 12 ओ क्लॉक पे दोनों हैंड क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, एक के ऊपर एक है। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ यहाँ पर, व्हेन क्लॉक हैंड्स, व्हेन क्लॉक हैंड्स कोइंसाइड with each other, coincide with each other, मतलब थीटा कितना है, 0 डिग्री, राइट। थीटा ऑब्वियसली 0 डिग्री है। तो अब इस केस में कितनी बार अकर होंगे ये, 12 आवर्स में कितनी बार अकर होंगे और 24 आवर्स में कितनी बार अकर होंगे। सी, द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक overlap 22 times a day, 22 times a day, डे मतलब 24 आवर्स के लिए। 24 आवर्स में कितना करता है वो, 22 टाइम्स करता है चिल्ड्रन। क्यों, इंपॉर्टेंट बात, इट को इंसाइड्स, इट को इंसाइड्स only one time, only one time at 12 o'clock between 11 o'clock and 11 o'clock टू कर लो 1 o'clock। ठीक है, म्हणजे क्या कहना चाह रही हूं मैं, जैसे यहाँ पर है, दिस इज 1 2 3 4 5 6, दिस इज 11 10 9 8 7। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि यहां से लेकर यहां तक 11 ओ क्लॉक से लेकर के 1 ओ क्लॉक तक के बीच में ये सिर्फ वन टाइम ही ओवरलैप करता है, दैट इज एट 12 ओ क्लॉक। 12 ओ क्लॉक पर ही ये कोइंसाइड करेगा 11 से लेकर 1 तक के बीच में, अदरवाइज ये कोइंसाइड नहीं करेगा, राइट। सो व्हाट कैन आई से, इन 12 आवर्स it coincides 11 times, and in 24 hours it coincides 22 times। ये हमारे काम की बात कि थीटा 0 डिग्री कब होता है, या हैंड्स ऑफ अ क्लॉक ओवरलैप कब करते हैं एक दूसरे को, कितने टाइम करते हैं। अगर 12 आवर्स की बात हो रही है तो 11 टाइम्स, और 24 आवर्स की बात हो रही है तो 22 टाइम्स। क्लियर है चिल्ड्रन। सो इसी पे बेस्ड अपन एक आध क्वेश्चन करते हैं। सो द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहता है, फ्रॉम मंडे 3 PM टू ट्यूसडे 6 PM, फ्रॉम मंडे 3 PM to Tuesday 6 PM to Tuesday 6 PM, how many times did the minute and hour hands coincide? How many times did the minute and hour hand, how many times did the minute and hour hand coincide
राइट। तो अब इसका सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से है। सी मंडे 3 पीएम से अगर मैं काउंट करना चालू करूं, मंडे 3 पीएम से ट्यूसडे 3 पीएम तक कितने आवर्स हो गए चिल्ड्रन? 24 आवर्स हो गए, राइट। 24 आवर्स हो गए। फिर उसके बाद +3 आवर्स और हैं, है ना, मतलब 3 to 6 के जो है, 3 to 6 पीएम के जो है। सो मंडे 3 पीएम से ट्यूसडे 3 पीएम तक के कितने? 24 आवर्स हैं। तो सबसे पहले अपने को ये पता है कि इन 24 आवर्स हाउ मेनी टाइम्स डिड द मिनट एंड आवर हैंड कोइंसाइड। अभी हमने पढ़ा कि 24 आवर्स में इट कोइंसाइड्स हाउ मेनी टाइम्स? 22 टाइम्स, राइट। इट कोइंसाइड्स 22 टाइम्स। कितनी बजे तक हो गया? अप टिल ट्यूसडे 3 पीएम, राइट। फिर बिटवीन 3 to 6, अब बिटवीन 3 पीएम टू 6 पीएम कितनी बार और करेगा? ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे की बात हो रही है भाई, ये ट्यूसडे की बात हो रही है, जो बाकी के 3 घंटे बचे हैं। इट विल कोइंसाइड हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। इट विल कोइंसाइड 3 टाइम्स, क्योंकि हर एक घंटे के लिए एक बार कोइंसाइड करता है वो। इट विल कोइंसाइड 3 टाइम्स, राइट। तो टोटल कितने हो गए? टोटल कितना हो गया चिल्ड्रन? 22 + 3, दैट इज 25 टाइम्स इट विल कोइंसाइड। आया समझ में? ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं चिल्ड्रन इसी पे बेस्ड। जैसे क्वेश्चन इज एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 आप ये मान लो 7 o'clock and 8 o'clock are the hands at 45 degree? Are the hands ओके। तो फिर अब ओके, अच्छा, तो फिर पैसे ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, ओके। So, at what time between 7 o'clock and 8 o'clock are the hands at 45 degrees? ये हमें पता करना है। So children, अब समझना ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 7 o'clock और 8 o'clock के बीच में 45 डिग्री कितनी बजे बजेगा, है ना। समझो कि ये क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। See, this is 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, है ना। तो अब वो ये बोल रहा है कि 7 बजे से मतलब ये 7 से लेकर 8 तक के बीच में, 7 बजे से 8 बजे तक के बीच में चिल्ड्रन 45 डिग्री एंगल कितनी बजे बजेगा, है ना। तो अब ये मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ? अपने को फॉर्मूला पता ही है, थीटा इक्वल्स टू 11/2 इंटू मिनट्स माइनस
30 इंटू आर, है ना। अब थीटा मुझे पता है कितना है, 45 डिग्रीज है ना, 45 डिग्रीज है, इक्वल्स टू मिनट हमें पता नहीं है ना, मिनट मुझे पता नहीं है, एंड आर कितना है, आर कितना है चिल्ड्रन, 7, ऑब्वियसली क्योंकि 7 से 8 के बीच में है, तो आर कितना है, ऑब्वियसली देखो 7.1 भी हो सकता है, मतलब 7:01 हो सकता है, 7:30 हो सकता है, 7:45 हो सकता है, 7:59 हो सकता है, राइट, कुछ भी हो सकता है, बट 7 आर तो 7 ही रहेगा, है ना, मिनट कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज द थिंग। तो आर अपन कितना लेंगे चिल्ड्रन, क्योंकि वो बोल भी रहा है बिटवीन, बिटवीन है 7 से 8, है ना, तो मतलब फिक्स 7 भी नहीं है और फिक्स 8 भी नहीं है, 7 से 8 के बीच में है, राइट। सो ऑब्वियसली आर मेरा 7 है, मिनट मुझे पता करना है ना। बट चिल्ड्रन अब यहाँ पे कैच क्या है कि थीटा प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ऑब्वियस ही बात है ना भाई। जो मेरा मिनट हैंड है, जो मेरा मिनट हैंड है वो आर हैंड से पीछे भी हो सकता है और आगे भी हो सकता है, क्लियर है, मतलब 7:15 पे भी हो सकता है ऐसा, 7:25 पे भी हो सकता है, या 7:50 पे भी हो सकता है, राइट। सो मिनट हैंड या तो क्रॉस हो सकता है आर हैंड को, या आर हैंड क्रॉस कर सकता है मिनट हैंड को, तो मतलब मेरा थीटा क्या होना चाहिए, प्लस माइनस, थीटा मेरा क्या होना चाहिए चिल्ड्रन, यहाँ पे कैच क्या है, कैच यही है कि थीटा मेरा प्लस माइनस 45 डिग्रीज होगा, आई समझ में बात। तो मैं एक बार थीटा को प्लस लेती हूँ, एक बार माइनस लेकर के करूंगी, क्लियर, आए समझ में। तो एक बार मैंने थीटा को लिया, मिनट मेरे मुझे पता नहीं है, मिनट मैंने मिनट ही लिख लिया, -30 इंटू 7, और एक बार मैंने -45 डिग्रीज ले लिया, इक्वल्स टू 11/2 इंटू मिनट -30 इंटू 7, क्लियर। अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस विल गिव अस हाउ मच, 45 equals to 11/2 इंटू मिनट 21, 210 डिग्री कितना हो जाएगा ये, ऐड कर देंगे अपन तो दिस बिकम्स 5 4 5 255 इंटू 2 अपॉन 11 इक्वल्स टू मिनट। तो मिनट मेरा कितना हो गया चिल्ड्रन, 0 10 and 1 11 and 1 2 2 4 and 510 upon 11, that is something equal to 46 minutes 4/11, है ना, इतने मिनट्स हो गए। मतलब टाइम क्या हो गया, टाइम मुझे क्या मिला चिल्ड्रन, 7:46 4/11 मिनट्स, ठीक है। तो मतलब आप मान लो कुछ इस जगह, जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि सिंस ये पॉजिटिव आ रहा है, डिग्री पॉजिटिव आ रही है मेरी, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी समवेयर हियर, मतलब 45, तो मतलब कहीं कहीं, जैसा थोड़ा सा आप यहाँ मान लो, है ना, थोड़ा सा यहाँ, और ये थोड़ा सा, जस्ट अ सेकेंड, इस जगह, इस जगह मान लो, ये तो मिनट हैंड हो गया मेरा, और ये आर हैंड हो गया, ये मिनट हैंड और ये आर हैंड, क्लियर। तो ये तो एक टाइम हो गया। अब दूसरा टाइम कैलकुलेट करते हैं चिल्ड्रन। सो दिस इज गोइंग टू बी -45 प्लस 210 डिग्रीज इक्वल्स टू 11/2 मिनट, है ना। तो यह कितना मिल गया मुझे, दिस कम्स आउट टू बी 5 ये मैंने कर लिया,
This is 10 minus 5 is 5, 10 minus 4 is 6, and 165 into 2 upon 11 equals to मिनट्स. तो वो मिनट कितने आ गए मेरे पास? Minutes comes out to be equal to that 10 and 1 is 12, then 13 and 1, 2 and 3 upon 11. So this comes out to be 30. राइट तो दूसरा टाइम क्या हुआ? 7:30. राइट दूसरा टाइम क्या हुआ चिल्ड्रन? जहां पे मुझे 45 डिग्रीज मिलेगा वो है 7:30. तो एक मुझे इस टाइम पे मिल रहा है 7:46 4/11 मिनट्स, और दूसरा मुझे मिल रहा है 7:30 पर, मतलब समवेयर यहाँ और यहाँ. ठीक है, तो ये इस तरह से निकलेगा चिल्ड्रन. आई बात समझ में? सो गेस चिल्ड्रन, दिस इज इट फॉर टुडे. कैलेंडर का मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देती हूँ चिल्ड्रन. कैलेंडर का थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ. सो यू ऑल नो कि कैलेंडर होता क्या है बेसिकली. ये हम सब जानते हैं भाई. ईयर होता है पूरा 365 डिग्रीज का, 365 नॉट डिग्रीज, 365 डेज का. मतलब अगर मैं आप ये मान लो ऑर्डिनरी ईयर की अगर बात करूं, वन ऑर्डिनरी ईयर की अगर मैं बात करूं तो उसमें 365 डेज होते हैं. और अगर मैं लीप ईयर की बात करूं, अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो उसमें 366 डेज होते हैं. राइट 366 डेज होते हैं. तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे हम कि कोई लीप ईयर है या कोई ऑर्डिनरी ईयर है? राइट मान लो मुझे कोई भी जैसे दे रखा है ईयर 2019 है ना. सो 2019 ईयर दिया है तो मैं उसको डिवाइड करूंगी 4 से. अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो इसका मतलब वो लीप ईयर है, अदरवाइज ऑर्डिनरी ईयर है. राइट तो यहाँ पे कंप्लीटली डिवाइड हो ही नहीं रहा है. राइट ये कंप्लीटली डिवाइड हो ही नहीं रहा है. इसका मतलब 2019 इज एन ऑर्डिनरी ईयर. राइट अगर सेम वेज में मैं बात करती हूँ 2016 की. अब इसको डिवाइड करते हैं 4 से. कंप्लीटली डिविजिबल है, so this is completely divisible children. तो इसका मतलब 2016 क्या हुआ? एक लीप ईयर हो गया. क्या हो गया? लीप ईयर हो गया. इस तरह से आप देख सकते हो जैसे 2020. राइट ये भी क्या हुआ? एक लीप ईयर हो गया. या आप सोचो जैसे 2008 है ना, 2008. अब इसको 4 से डिवाइड करो, 4 5 20 एंड 4 2 8 502. ये 2008 भी क्या हो गया? लीप ईयर हो गया. ये सब क्या है चिल्ड्रन? डिविजिबल बाय 4 है. डिविजिबल बाय 4 है तो ये लीप ईयर है, अदरवाइज ऑर्डिनरी ईयर है. जैसे 2017 हो गया. राइट 2009 हो गया, 2007 हो गया. ये सब क्या हो गए? ऑर्डिनरी ईयर हो गए. ये 4 से डिविजिबल नहीं. पर ये क्या हो गए? ये कौन से ईयर हो गए चिल्ड्रन? लीप ईयर हो गए. तो लीप ईयर की खास बात क्या है अब इसके अंदर? इसमें खास बात क्या है भाई? ऑर्डिनरी ईयर है, लीप ईयर है. क्या हाउ डज इट मेक्स एनी डिफरेंस? ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है, फेब्रुअरी विल हैव 28 डेज है ना. लीप ईयर है, फेब्रुअरी विल हैव 29 डेज. यही डिफरेंस है चिल्ड्रन. डिफरेंस यही है. लीप ईयर अगर होगा तो फेब्रुअरी में 29 डेज होंगे, ऑर्डिनरी ईयर होगा तो फेब्रुअरी में 28 डेज होंगे. क्लियर है चिल्ड्रन? फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैलेंडर से रिलेटेड और पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे. बट आज के लिए इतना ही. Thank you so much for watching children. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye.